ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ପଢ଼ିଥିବା ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର ଓ ଲବଣ ଯାହା କିଛି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କିଛି ପରୀକ୍ଷଣ କରିକି ଆଜି ଏଠି ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛି ଅମ୍ଳ କି କ୍ଷାର ତାହାକୁ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଅମ୍ଳ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି କି ଆମେ କାହାକୁ ଅମ୍ଳ କରୁ, କେବଳ ତାର କିଛିଟା ଗୁଣକୁ ଆମେ ନେଇକି କହିପାରିବା କି ଏଥିରେ ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଅଛି ନା କ୍ଷାରତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଅମ୍ଳ କରୁଛୁ ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁ ଯେଉଁଟା ପାଟିକୁ ଚାଖିଲେ ଖଟା ଲାଗେ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅମ୍ଳ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହାକୁ ପାଟିକୁ ଚାଖିଲେ ଖାଦୁଆ ଲାଗୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ଷାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯଦି ଆମେ ତାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆକାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟା ଅମ୍ଳ ସେଇଟା H+ ଆୟନ୍ ବା କ୍ୟାଟାୟନ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କଲେ ସେ କ୍ୟାଟାୟନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷାର କହୁଛେ ସେଥିରେ OH- ଆୟନ୍ ବା ସେ ଏନାଇନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ସେ କ୍ୟାଟାୟନ୍ସ ଏନାଇନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏଠି ଆଉ ଦେଖିବା କି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏଥିରେ ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଅଛି ନା କ୍ଷାରତ୍ୱ ଗୁଣ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ପଢ଼ିଛେ କି କିଛିଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆମେ କହୁଛେ ସୂଚକ। ତ ସେମିତି ସୂଚକ କିଛିଟା ନେଚୁରାଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆମର ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇକି ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା କଲା ପରେ ସେହି ପାଣିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂଚକ ଆକାରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆମେ କରିଛେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଅଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏସିଡ୍ ବା ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଆମେ ପକାଇବା ସେ ତାକୁ ଆଉ ବି ପିଙ୍କ କଲର୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି, ଦେଖ ପିଲା ସେଟା ହଳଦୀ। ତ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରେ କ୍ଷାରୀୟ ଜିନିଷକୁ ସେ ତା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କୋନା ଲୁହା ଗୁଡ଼ାକରେ ଯଦି ହଳଦୀ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଘରେ ସଫା କଲା ସମୟରେ ସର୍ଫ ଯଦି ସଫା କରୁଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସର୍ଫର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ବା କ୍ଷାରର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ହେଇଯାଏ ବା ବିଭିନ୍ନ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଠି ବି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କରିକି ବି ଦେଖିପାରିବା, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆଉ କିଛିଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆମେ ନେଇଛେ ଯେମିତିକି ଲିଟମସ୍ ପେପର। ତ ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ପେପର ଆକାରରେ ମିଳିନଥାଏ। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଦିଏ ସେଇଟା ଲାଇକେନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ। ତ ସେ ଲାଇକେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ଏଇଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ନୀଳ କଲର୍ର ଲିଟମସ୍ ପେପର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନାଲି କଲର୍ର ଲିଟମସ୍ ପେପର। ତ ଏ ଲିଟମସ୍ ପେପର ହେଲା ଲାଇକେନ୍ ନାମକ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତ ଲାଇକେନ୍ ନାମକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ସେଇଟା ହେଲୋଫାଇଟା ଶ୍ରେଣୀର ଅଟେ। ସେମିତି ଆଉ କିଛିଟା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ବି ହେଲା ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫିନୋଫ୍ଥାଲିନ୍। ଆଉ ଫିନୋଫ୍ଥାଲିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ରଙ୍ଗହୀନ, ତାର କିଛି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ପାଣି ପରି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫିନୋଫ୍ଥାଲିନ୍ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲା, ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଏଠି କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଲା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତ ଏହାର ପାଉଡ଼ର ଫର୍ମ ବି ମିଳିଥାଏ, ପାଉଡ଼ର ଆକାରରେ ବି ଆମେ ଏଇ ଇଣ୍ଡିକେଟରଟା ପାଇପାରିବା। ତ এইগুଡ଼ାକ ହେଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସୂଚକ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ ନେଇଛେ। ତ କିଛିଟା ଅମ୍ଳ ଆମେ ନେଇଛେ, କିଛିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଯେମିତିକି ହେଲା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେଇଛେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ କହୁଛେ। ଆଉ କିଛିଟା ୱିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଆମ୍ବ, ଟମାଟୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲେମ୍ବୁ। ଆମେ କହୁଛେ ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଅମ୍ଳ ବା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ କହୁଛେ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେଖିବା, ଟମାଟୋ ଅଛି ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ। ଯଦି ଆମେ ଆମ୍ବ ଦେଖିବା, ଆମ୍ବର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ସମୟରେ କଞ୍ଚା ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଖଟା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପାଚିଗଲେ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ତାର ବି କାରଣ ଅଛି, କଞ୍ଚା ଥିବା ସମୟରେ ଆମ୍ବରେ ପାଖାପାଖି 6ଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅମ୍ଳ ରହିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ମାଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କି ଆମେ କହିବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ କି ଟାଟାଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତେନ୍ତୁଳିରେ ଥାଏ, କି ସକ୍ସିନିକ୍ ଏସିଡ୍। ତ এই ସବୁ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା କଞ୍ଚା ଥିଲା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ପାଚିଗଲା ପରେ ସେଇ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ାକର ମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଟା ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଆମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ନେଇଛି, ଯେମିତି ହେଲା ଭିନେଗାର। ତ ଭିନେଗାରରେ ପୁଣି ଜାଣିଥିବ ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଛି ଭିନେଗାରରେ। ଆଉ ଆମେ କିଛିଟା କ୍ଷାର ଆମେ ନେଇଛେ, ଯେମିତି ହେଲା ଚୂନ। ତ ସେ ଚୂନର ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ଏଠି ତିଆରି କରିଛେ, ଚୂନ ପାଣିଟା। ଏଠି ହେଲା ଚୂନ, ଏଟା ହେଲା ଚୂନ ପାଣି, ଗୋଟେ କ୍ଷାର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଆମେ ନେଇଛେ ସର୍ଫ, ଏଇଟା ଆମେ ନେଇଛେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ନେଇଛେ ଲୁଣ। ତ ଏଥିରୁ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷାର ଅଛି, କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ଲବଣ ବି ଅଛି।
तो आम प्रथम आम परीक्षा करके देखा जो आम कहे हलदी तो आम जेकोसी जिनस परीक्षा करने प्रथम आम तार द्रवण प्रस्तुत करने पड़ो कहीं बिना द्रवण में आम एक परीक्षा करना तो द्रवण प्रस्तुत करने आम गोटे वाच ग्लास आम किसी हलदी देकी से किसी पानी आम पकईसु तो पानी पकईला आम जमी जानू कि हलदी कौन करे से केवल क्षारीय जिनस को सूचई थाए आम कहीपर कि आम कौटा क्षार से गुड़ाक केवल आम जापर अम्ल सहित यहाँ तार फलते किसी रंग किसी परिवर्तन हुए ना तो जब आम गोटे क्षारीय जिनस जमीक आम देचे चून पानी तो चून पानी जो किसी द्रवण कि आम पकईवा देखा तार रंग कौन परिवर्तन घटुची देखा पे ये आम नहीं चून पानी तो चून पानी को जब आम नहीं वाच ग्लास आम कि पकईवा देख तार कलर कौन परिवर्तन घटुची देखिपर तो पूर्व तार रंग जोटा था हलदिया किंतु यहाँ पकईला तार रंगटा परिवर्तन घटिकी लोहित बादामी हो सामान्य लाल कलर हो गला तो ये आम जापर यहाँ गोटे सूचक आकार आम व्यवहार कर कि जानापी कि कौन आम क्षारत्व अच्छी तो से क्षारत्व जानापी आम हलदी व्यवहार कर तो आम ये गोटे जिन जाना जे हलदी क्षारीय जिनस क्षारीय द्रवण सहित जो आम प्रतिक्रिया कर तार रंगटा कौन हो लोहित बादामी रंग में परिवर्तन हो देख पे तार रंगटा लोहित बादामी हो गला सेमती जदि आम कह गोटे एसिड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करवा गोटे अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करवा तो आम देखा जदि ये जो हलदी आम नहीं हलदी कौन टा परिवर्तन हो देखा पे ये हलदी पानीटा हलदी द्रवण आम सृष्टि कर तैयारी कले एथि आम किसी एसिड आम पकईवा जमीक आम जानी कि लेंबुरे साइट्रिक अम्ल अच्छी तो ये साइट्रिक अम्लर यदि किसी रस आम ये पकईवा द्रवण पकईवा देख से किसी भी परिवर्तन होना रंगटा जमी हलदिया कि हलदिया रही जाए दुईटा जाक छोटे विकल्प आम लक्ष्य कर तो गोटे देख से सामान जिन जो आम यहाँ राइट साइड यहाँ जो पकई ये कौन है पाखापी रेड कलर हो यहाँ जोटा था से हलदिया कलर तार रंग किसी परिवर्तन घटी नहीं तो ये कौन आम क्षार आम अम्ल तो आम जाना क्षार जो तार रंगटा परिवर्तन हो जाए तो पिलाने आम किसी प्राकृतिक सूचक व्यवहार करके आम अम्ल क्षार केमी चिन्हवा से आम करके देखिए एवं आम कौन करवा आम लिटमस पेपर व्यवहार देखा तो लिटमस पेपर को व्यवहार करके आम केमी जाना कि कौटा अम्ल आ कौटा क्षार तो ये आम कौन करें दुईटा अलग अलग जिनस नहीं गोटे देख पे ये चून तो चून को आम द्रवण तैयारी कर चून पानी तैयारी कर तो चून को लेकिन चून पानी तैयारी कर सर्फ आम ये पानी तैयारी कर द्रवण तैयारी कर तो यहाँ उभय उभय जोटा है यहाँ क्षार तो आम आउ जोटा नहीं यहाँ साइट्रिक अम्ल लेंबुर पानी आम नहीं आउ यहाँ है भिनेगार कौन एसिटिक अम्ल तो भिनेगार तो एसिटिक अम्ल आ गए है साइट्रिक अम्ल तो ये दुईटा है अम्ल ये दुईटा है क्षार तो आम केमी जाना तो आम लिटमस पेपर को व्यवहार करके आम केमी जाना कौटा अम्ल कौटा क्षार गोटे हिसाब से आम कहीपर कि आम लिटमस पेपर मान सहित जब ये द्रवण बुड़ेबा से किभली रंग परिवर्तन करा भी आम जापर तो ये आम देखा आम चारि गोटी लाल कलर लिटमस पेपर नौ देख तो आम प्रथम कौन करवा ना आम जो आम द्रवण देसी एसिड द्रवण से बुड़े देखा एसिड द्रवण जो आम बुड़े देखा देख पे कौन परिवर्तन घटुची देख यहाँ लाल कलर लिटमस पेपरटा ये किसी परिवर्तन होना तो यहाँ हूँ लाल कलर लिटमस पेपर यहाँ आम कौन भिनेगार आम बुड़े देखिए भिनेगार बुड़े देखिले देखा देख पे
तो लाल कलर लिटमस पेपर उभय थे आम बुड़े देखिले उभय द्रवण से रंग किसी भी परिवर्तन है ना। तो एवेका जदि आम लाल कलर लिटमस पेपर नहीं कि आम जो क्षारीय द्रवण अच्छी से डीप करके देखा कौनटा परिवर्तन घटुଛି। तो प्रथम आम जोटा देखा चून पानी देख देख पे तुम लक्ष्य कर दुईटा एक लिटमस पेपर को तो दुईटा एक लिटमस पेपर तार रंगटा परिवर्तन घटी जाए गोटे जो लाल कलर लिटमस पेपर था से ब्लू रंग जो आम डीप करचे तल रंगटा से ब्लू कलर परिवर्तन होती दुईटा ब्लू कलर परिवर्तन होती कहीं अधिक जल अच्छी से संपूर्ण मात्रा यहाँ चेंज हो पारि ना। तो ये गोटे जिन जाना जे लाल कलर लिटमस पेपर क्षार सूचेवाई आम व्यवहार कर तो लाल कलर लिटमस पेपर को जब कौन क्षारीय द्रवण आम पकईवा बुड़ेवा तार रंगटा ब्लू कलर यहाँ परिणत घटुଛି। एवं जब आम से ब्लू कलर लिटमस पेपर ना और आम ये चारिटी जाक जो द्रवण आम देती आम डीप करवा देखा कौनटा परिवर्तन घटुଛି। तो प्रथम आम जब नील कलर लिटमस पेपर को लेकिन आम कौन करवा फास्ट गोटे क्षार आम बुड़े देखा तो देख से ब्लू कलर ब्लू कलर होगला किसी रंग परिवर्तन घटूना। एवं जब आम गोटे जो आम चून पानी नहीं चून पानी भी जब आम बुड़े देखा देख ये तार रंग किसी परिवर्तन होना। एवं से लिटमस पेपर को जदि आम जो आम एसिड अम्लर जो द्रवण आम तैयारी करते से बुड़ेवा देख यहाँ फास्ट थे पे यहाँ साइट्रिक अम्लर द्रवण लेंबू पानी से बुड़ेला देख सागे सागे तार रंगटा लाल रंग परिणत होगला। जदि एवं आम से भिनेगार जब बुड़ी देखा देख कौन परिवर्तन हो देख एवं आम भिनेगार जब आम बुड़ी देखा तो भिनेगार भी से सामान है से लाल रंग परिणत होगला। तो ये गोटे जिन आम स्पष्ट होगला जे ब्लू कलर लिटमस पेपरटा अम्लीय द्रवण जब आम बुड़ेवा तार रंगटा परिवर्तन घटुଛି ब्लू कलरटा लाल रंग परिवर्तन हो जाऊँगी। किंतु से ब्लू कलरटा जब आम क्षारीय द्रवण बुड़ेवा तार रंग किसी परिवर्तन घटूना। का अर्थ है कि आम ब्लू कलर लिटमस पेपर आम अम्लीय पदार्थ को चिन्हवाई चिन्हट करने आम व्यवहार कर। एथर आउ गोटे जिन अच्छी पे जापर जे आउ गोटे जिन अच्छी पीएच पेपर तो आप पीएच पेपर बही भी देखी पढ़ी भी थी जे पीएच पेपर है प्रोटीएज ऑफ एच आम कहे हाइड्रोजेन गाढ़ता। तो हाइड्रोजेन गाढ़ता आम क्या कहे जे जदि गोटे द्रवण आम तैयारी करुचे से ही द्रवण में हाइड्रोजेन मात्रा केते अच्छी कनसेंट्रेशन लेवल केते अच्छी ताहाको आम कहे हाइड्रोजेन गाढ़ता। तो से हाइड्रोजेन गाढ़ता उपर ये रंगटा निर्भर करे। तो ये आम द्रवण बुड़ेला से जब आम गोटे पीएच पेपर को लेकिन जदि आम गोटे द्रवण आम बुड़ेवा बुड़ेला आम जापर तार रंग कौनटा परिवर्तन घटुଛି देख पे यहाँ तार रंगटा केमती सबुज होगला तो डीप सबुज होगला। तो आम मैच करवा कौ नंबर कलर सहित से मैच करें तार पीएच केते। तो जो पीएच पेपर रंग जो पीएच पेपरटा डीप कलापर तार रंग जमी परिवर्तन घटुଛି रंग परिवर्तन घटला तो रंग परिवर्तन घटला से रंगटा जहाँ सहित सामान हो जो नंबर सहित सामान हो तार पीएच आम से कहीपर। तो ये पीएच पेपरटा ये आम जापर कहार पीएच केते कहार अम्लीय गुण केते अच्छी कहार क्षारीय गुण केते अच्छी से गुड़ा आम जापर। आगे जानी कि पीएच रे 0 ରୁ 14 पर्यंत नंबर थाए। तो 0 माने 7 ରୁ तल को से आम कहे अम्ल और 7 ରୁ ऊपर खोली आम कहे क्षार तार 7 ରୁ जिते कम हो तार अम्लीय गुण से बढ़ी बढ़ी की 7 ରୁ नंबर टी अधिका हो तार क्षारीय गुण से अधिका हो। तो यहाँ पे आम जो पीएच पेपर केमती आम व्यवहार करवा आम कहवा कि आम केमती लिटमस पेपर को व्यवहार करके अम्ल क्षार जापर। आउ गोटे परीक्षा आम करवा जे आम जो कहते सिंथेटिक इंडिकेटर जहाँ आम कहे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। जब आम
गोटे टेस्ट ट्यूब्रे किसी मिथाइल ऑरेंज नवा देखो इधर किसी मिथाइल ऑरेंज देसी आउ गोटे टेस्ट ट्यूब्रे भी से समान मिथाइल ऑरेंज नौ जदि ए मिथाइल ऑरेंज रे आमे आमे जो क्षार देचे से क्षार ही मुझे पकाऊँ जदि मुझे किसी क्षारीय द्रवण ए पकईबी देखा तार किसी परिवर्तन हो कि ना देख पे यहाँ जो अम्ल जो क्षार नहीं मिथाइल ऑरेंज रंग में किसी परिवर्तन घटू नहीं से मिथाइल से ऑरेंज कलरटा ऑरेंज कलर ही अच्छी जदि मुझे किसी एसिड देवी सपोज धरी मुझे नाइट्रिक अम्ल बा HNO3 नहीं देखुचे तो जदि मुझे किसी अम्ल पकईबी देखिए तार रंग कौन परिवर्तन घटुचे तो देखिपर पे यहाँ लाल रंग में परिवर्तन हो गला तार अर्थ है जे जो समय जो आम सिंथेटिक इंडिकेटर कहूँ मिथाइल ऑरेंजटा जदि एसिड बा अम्ल संस्पर्श में आसुची तार रंगटा परिवर्तन घटुची किंतु जदि क्षार संस्पर्श में आसुची तार रंग में किसी परिवर्तन घटू ना तो ये आउ जिन कहवाई चाहिए जदि तुम नाइट्रिक अम्ल कि सल्फ्यूरिक अम्ल तुम व्यवहार कला समय ठीक सतर्कता अवलम्बन कर कहीं जो समय ये अम्ल गुड़ाक पानी जल संस्पर्श में आसे ये सागे सागे ताप उत्पन्न करे बहुत जोर ताप उत्पन्न हुए और बहुत गुड़ा चान्स अच्छी कि जदि आम यहाँ जेहतु आम डाइल्यूट करके रखिए से बेसी रासायनिक प्रतिक्रिया करें जदि यहाँ कनसेंट्रेटेड हो आम कर जदि हाइड्रोजन मात्रा अधिका थी से क्षेत्र में कौन हम जदि आम यहाँ पानी पकईवा यहाँ सागे फाटी जबार भी चान्स अच्छी बस्ट करवा चान्स अच्छी तो से सतर्कता अवलम्बन कर तो यहाँ आम देखी पे कौन ना आम केमी मिथाइल ऑरेंज आम व्यवहार करवा से सामान जदि आम कहवा एवं जो आम फिनोल्फथालीन आम नहीं देखा तो पिला देख दुईटा जाक टेस्ट ट्यूब्रे मुझे ड्रग फिनोल्फथालीन नौची एवं जदि ए आम अम्लीय जिन पकईवा देख कौन परिवर्तन घटुचे देख ये अम्ल पकईली परिवर्तन घटूना जदि ए किसी क्षारीय जिन पकईबी देख तार कौन परिवर्तन घटुचे तो देख पे तो जो समय क्षार संस्पर्श में फिनोल्फथालीन आसला तार कलरटा पिंक हो गला किंतु जदि आम अम्ल सहित तार जब आम देखुचे प्रतिक्रियाटा से किसी कलर तार चेंज हो ना तो ये आम गोटे जिन कहीपर कि आम फिनोल्फथालीन व्यवहार करुचे आम क्षारीय जिन चिन्हवाई आम मिथाइल ऑरेंज व्यवहार करुचे अम्लीय जिन चिन्हवाई तेज जदि ये आम सामान्य एसिड पकईदेवा सपोज आम धरी नि आम ए साइट्रिक अम्ल किसी ड्रप आम पकईदेला देख तार रंग पुणी चेंज हो गला पिलाए तो ये गोटे जिन तुम जापर जे आम कहीपर जो समय आम फिनोल्फथालीन क्षारीय जिन पकई तार रंग परिवर्तन घटला पुणी जो अम्ल पकईदे से पुणी कौन है से रंग विहीन हो गला तार अर्थ यहाँ प्रशमित हो गला ताको आम कहूँ न्यूट्रालाइजेशन प्रोसेस और ताको आम कहूँ प्रशमनीकरण कहूँ तार अर्थ है जे अम्लीय जिनिस जदि कह अम्लीय गुण अधिका अच्छी ताको न्यूट्राल करने आम चाहूँचे से आम किसी क्षारीय जिन मिसईदेवा तो ये तार प्रशमित हो जाए न्यूट्रालाइज हो जाए अपोजिटली जब आम कहवा जदि कौन ये जमी अच्छी लाल रंग अच्छी तार अर्थ है यहाँ एसिड मात्रा अधिक अच्छी जदि ये आम किसी क्षारीय जिन पकईदेवा तो यह यहीटा भी सेमती प्रशमित हो देख पे यहाँ पुणी से मिथाइल ऑरेंज तार कलरटा पड़े आसला तो एमती आम प्रशमित करता से सामान उपाय जे बहुत गुड़ा समय आम कहूँ कि आम पेट भितर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न हुए आम स्टोमाक तो जो आम कहूँ आम कहूँ कि हाकुटी आसे आउ पाटी को खटा खटा लगे तो से पाटी खटा लगे अर्थ है कि आम पेट भितर जो एसिड अम्लटा अच्छे से पाटी माने आम खाद्य नड़ी देकी पाटी पाखक पड़े आस तो सहीटा है आम कौन करूँ एंटासिड आम व्यवहार कर तो एंटासिड सेमती गोटे एंटासिड ना है आम जोटा कहूँ सोडा खाइबा सोडा तो यहाँ है गोटे एंटासिड तो एंटासिड आकार आम या व्यवहार कर तो एंटासिड माने है जे जो अम्लीय गुण को प्रशमित कर गोटे उपाय
ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣଟା ଯଦି ପେଟ ଭିତରେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଟା ଯଦି କିଛି କ୍ଷାର ମିଶାଇ ଦେବା ସେଇଟା ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯିବ, ତା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଯେଉଁ ହାକୁଟି ଆସିଥିଲା ହାକୁଟି ଆସିବାଟା ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଉପାୟ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ତ ତୁମ ପାଇଁ ପିଲା ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଏହା ଭିତରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କି କେଉଁ ଅମ୍ଳରେ ମାନେ କେଉଁ ଫଳରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ, ଏଇଟା ଆମକୁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦର ନାଁ କହ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳ ଭରି ହେଇକରି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଲା ତ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଜାଣିବା କଥା କି କିଛିଟା ସବଳ ଅମ୍ଳ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସବଳ ଅମ୍ଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା HCl ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, H2SO4 ଆମେ କହୁଛେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆଉ HNO3 ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ତ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କନସିଡର କରୁଛେ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଥିରେକି ଆମେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ H+ ଆୟନ୍ସ ବା ଆମେ କେଟାଇନ୍ସ ପାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ ପରିମାଣର H+ ଆୟନ୍ସ ଯେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଭିନେଗାର ବା ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଯାହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା CH3COOH। ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ, କମଳା ବା କମଳା ଯେତେ ବି ମାନେ ଆମ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ସାଇଟ୍ରସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କହୁଛେ ସବୁଥିରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଥାଏ, ଯାହା ଫର୍ମୁଲା ହେଲା C6H8O7। ସେମିତି ଟମାଟୋ ବା ପାତଳଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା C2H2O4। ସେମିତି ଦହିରେ ଥାଏ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଯାହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା C3H6O3। ତେନ୍ତୁଳି ଥାଏ କାଟାଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଫର୍ମୁଲା C4H6O6। ସେମିତି ବିଛୁଆତି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଛୁଆତି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଆଉ ଥିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ଯେଉଁ ଆମକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ସେଇଟା ସେ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ତାର ନାଁ ହେଲା ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ମିଥାନୋଇକ୍ ଅମ୍ଳ ଆମେ କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ CH2O2 ବା HCOOH ଯାହାର ଫର୍ମୁଲାଟା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ। ଯଦି ପିଲା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିପାରିବ କି ଆମକୁ ଯେଉଁ ମହୁମାଛି ଚାବିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆମକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ପୀଡ଼ା କାହିଁକି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ସେଥିରେ ଥାଏ? ତେବେ ନିଜେ ବାହାର କରିବା ଆଉ ଏଇଟା କହିବ ପିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅମ୍ଳ ବିଷୟରେ ଥିଲା ପିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, କ୍ଷାର ବି ସେମିତି ସବଳ କ୍ଷାର ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन जोटा आसे आम क्या मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कही था जो क्षार अच्छे जहाँ आम कह मिल्क ऑफ मैग्नेशिया ताको आम क्या कही था तो तार सिंबल है पे MgOH2 जहाँ आम कहे मिल्क ऑफ मैग्नेशिया आम कहे मिल्क ऑफ मैग्नेशियम बाबा आम कहे मैग्नेशियम ऑक्साइड। ये गोटे जिन पिला अच्छी कि जब सपोज जहाँ पछ गोटे आम OH सफिक्स आकार लगे सबको आम कहे हाइड्रोक्साइड कहीं कहे ता पूर्व आम जहाँ भी लगेगा ता ना सहित आम हाइड्रोक्साइड को आम जोड़ीदेवा तो सेगुड़ा सब गोटे गोटे क्षार होमी आम कह KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड होगा NaOH जब आम कहवा आम कहे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहे जब आम कहवा NH4OH ताको आम कहे एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ताको कहवा आम एमोनियम हाइड्रोक्साइड जदि आम सेमती आम देखा तो युवा सब जोटा क्षार। तो यह सहित आम आउ दुटा जिन जो आम परीक्षा करने व्यवहार करते गोटे पिला सोढ़ा खाइबा सोढ़ा जब आम खाइबा सोढ़ार आम संकेत देखा ताको आम कहे बेकिंग पाउडर ताको आम कहे NaHCO3 ताको आम पढ़ा सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट आम पढ़ी था देखो सोडियम हाइड्रोजेन
कार्बोनेट जदि आम यार सल्यूशन बा द्रवण आम तैयारी करवा आ पीएच पर घोड़े पीएच यार पीएच बा आम तार जदि अम्ल बा क्षारत्व आम मापिबा मापिले आम देखी पारे कि यार पीएचटा यहाँ सामान्य खादुआ पीएचटा से या जब आम कहवा कि यहाँ जब पिरोक्सलिन द्रवण पकेबा यहाँ तार रंग को परिवर्तन करके पिंक कर दिए कहीं यहाँ सामान्य खाली क्षारत्व गुण देखाए। तो आउ गोटे जिन लिखले पिले वाशिंग सोडा धुआ सोडा वाशिंग सोडा जो जोटा आम कहे सर्फ कहे जो वाशिंग सर्फ आम कहे से सर्फ जब आम तार जब संकेत आम देखा ताको आम कहे Na2CO3 Na2CO3 ताको आम कहे सोडियम कार्बोनेट। दुईटा जिन पे जब लक्ष्य कर गोटे जिन जापर गोटे हाइड्रोजेन खाली गोटे एक्सट्रा गोटे मलिक्यूलटा अच्छी तो एक्सट्रा मलिक्यूल जोटा अच्छे आम कहीपर जब यहाँ आम काढ़ीदेवा तो एक्जाक्टली आम सोडियम कार्बोनेट पाइपर। जदि आम लवण पढ़ा समय आम देखी लवण प्राय 6 भाग में विभक्त होती गोटे साधारण लवण जो हाइड्रोजेन कि H+ कि OH- आयन न थाए ताको आम कहे साधारण लवण। जदि यहाँ जब देखुचे H+ आयन एथर अच्छी यहाँ आम कहे आम कहे एसिडिक सल्ट बोलिक आम कही एसिडिक सल्ट कहीं H+ रोटे आयन मिसिक अच्छी। जदि आम देखा वाशिंग सोडा जो पढ़ते सर्फ कहते Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आम कहते जदि आम पीएच पेपर यहाँ आम काढ़ आम नापा पीएच रा पाइबा 11 तो ये पिलाई अम्ल क्षार और लवण विषय।